we are passing through very difficult times, unprecedented and challenging times. In fact, we are at war with the disease, corona disease, which is unknown. And when the war is unknown, enemy is unknown, the solution too is not known. SME and MSME sector needs more than a helping hand, because it is the most important sector. It is the second largest employer after agriculture. Two demands are very crucial for MSME and SME, which has to be adhered to. First is moratorium of loan by 90 days with full waiver of interest. And second is for liquidity, because all SME, MSME and trade are under zero cash flow position now. So for liquidity, all existing fund and non-fund based facilities to be topped up with 25% increase with no processing charges or additional collateral should be given as demand loan in 48 hours to them. Hope this will be very helpful and be considered by the government. The manufacturing sector needs to be kick-started and it has to be made efficient. In order to do that, the government needs to take certain steps. First and foremost, the energy charges, the fixed energy charges needs to be exempted and only the usage charge needs to be levied. Secondly, PF and ESIC contribution by the employers, that needs to be debited from the earlier 10 years contribution given by the employer for another 1 year. Thirdly, the local charges such as Gram Panchayat charges, there has to be an exemption of minimum 50%. Fourthly, the GST payment, there has to be a moratorium of another 90 days without any interest levied on that. And finally, in sectors which are directly affected by COVID-19, the GST rates need to be looked into. More than 250 industries are directly or indirectly dependent on real estate, apart from a major labor force. Therefore, to improve the economy, the real estate sector should be given a boost. In that direction, we feel that real estate development should be recognized as an industry. Second, similarly, stimulus package for the real estate should be announced by the government as soon as possible. To generate demand, stamp duty should be reduced by 50% so that buyers are encouraged to buy the houses. We can keep this concession maybe just for 2 years to start with. Similarly, property tax on all properties, residential as well as commercial, should be reduced. इच्छितो की कोरोना ह्या महाग भयंकर विषाणू सोबत लढताना भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या सोबत आम्ही स्वतःची ग्वाही देतो. आणि दुसरी गोष्ट, हे सर्व करत असताना आपण तिसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये जात आहोत आणि करत असताना सरकारला आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हीची सांगड घालायची. या दोन्हीची सांगड घालत असताना व्यापारी उद्योजकांना सुद्धा सरकार वेगवेगळे पर्याय निवडून कसं अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचा याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच्यात आम्ही एवढी ग्वाही देतो की ह्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुरू करत असताना सरकारला जीवनाचा सुद्धा तेवढाच विचार करायचा आहे, लोकांच्या जीवाचा सुद्धा विचार करायचा आहे. याची सांगड घालताना त्यांना जे बी अडचणी असतील त्याला सहकार्य करण्याचा आम्ही पूर्ण कर्तव्य समजतोय. आणि शासनाने जे बी नियम घालून देतील, जे शिथिल केलेले आहेत आता नियम, त्या नियमाप्रमाणे पालन करून आम्ही शासनाच्या हातात हात घालून
आणि शासनाचे हात बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करू व आमच्या महाराष्ट्राला कोरोनामुक्त करण्यासाठी व या लढ्यात शासनाच्या सोबत राहण्यासाठी प्रयत्न करू। गवर्नमेंट से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इंपोर्ट बेस जिसने भी बिल ऑफ एंट्री फाइल किया हुआ है और कस्टम ड्यूटी भर नहीं पाए ड्यू टू द कोविड-19, उन सबका कस्टम ड्यूटी के ऊपर इंटरेस्ट जो लग रहा है वो गवर्नमेंट माफ करे। थैंक यू। मैं सरकार के द्वारा लिए गए सारे कदम की खूब खूब सराहना करता हूं और विशेष रूप से एक अनुरोध करना चाहता हूं। इंपोर्टर्स की परिस्थितियां आज बहुत एक देश में गंभीर हालात में खड़ी है, जहां पर आज भी गवर्नमेंट के द्वारा सारे नोटिफिकेशंस दिए जाने के बावजूद भी आज भी सीएफएस जो है वो वहां पर क्लेम करते हैं कि आप इस बार उसका सीएफएस चार्जेस जो है भरिए, उसके ऊपर जो भी लेट फीस वगैरह है वो भी भरिए। और जब हम उनसे आग्रह भी करते हैं कि कृपया इसको वेव्स किया जाए, और इसको वेव करने के ऑलरेडी नोटिफिकेशंस भी दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, फिर भी वो इसके बारे में इस तरह की कोशिश करते हैं कि नहीं आप इसको भरिए और रिफंड क्लेम करने के लिए आप अलग से रिफंड मांगिए। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरह के हर एक कस्टम्स डिपार्टमेंट को देश के हर विभाग के अंदर निर्देश तुरंत से तुरंत इसके निर्देश दिए जाए कि इस प्रकार के जो भी कोरोना को लेके, कोविड-19 को लेके जो भी इस तरह के मामले हैं उस पर ध्यान दिया जाए और हर प्रकार के ये जो इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो या चार्जेस हो, इस हर प्रकार के जो है उसको वेव किए जाए और इसका तात्कालिक इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए। लॉकडाउन के बाद जब वर्कर्स, लेबर्स अपने वर्क प्लेस की ओर आना चाहते हैं तो उस समय पे उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की उचित व्यवस्था प्रबंध की जाए और भाड़े में रियायत दी जाए। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नॉर्म्स को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, वो सभी यूनिट्स को सरकार की ओर से ESIC के पेमेंट में राहत दी जाए। और एक बात कि आगे आने वाले 3 और 6 महीने की सैलरी के लिए हम चाहते हैं कि वर्कर की सैलरी पे करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 50% और राज्य सरकार की ओर से 25% का कंट्रीब्यूशन दिया जाए। To request for a special but a genuine favor for waiver of rents payment during coronavirus for a period of 3 months. We request this waiver for the shops allotted to small traders by municipal corporations all over Maharashtra. स्टील सेक्टर में एक्सपोर्ट इंसेंटिव देना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट अवेलेबल हो जाए। स्टील सेक्टर में स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। इस समय हमारा पूरा देश और खास करके महाराष्ट्र बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे किराने व्यापारी, उनके कर्मचारी, मेडिकल शॉप्स के ओनर, उनके कर्मचारी, पेट्रोल पंप के ओनर, उनके कर्मचारी और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लोगों की सेवा में दिन रात व्यस्त है। हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जैसे उन्होंने डॉक्टर, नर्सिस और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस घोषित किया है, वैसे ही इंश्योरेंस कवर ये सारे व्यापारियों और उनके कर्मचारियों को भी दिया जाए, ताकि अगर इनमें से किसी को कोरोना इन्फेक्शन या ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो वो अपनी देखभाल अच्छी तरह से कर सके। I would request the government to declare special packages for the textile industry, hospitality sector, tours and travel sector, reality sector and the steel sector. हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों व्यापारी जो 12 से 14 घंटा काम करते हैं, अपनी खुद की लागत लगाकर, रिस्क लगाकर वो कमाते हैं, उसमें से भी 20 से 30% वो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरते हैं। उसके बावजूद भी जब भी उनकी उम्र हो जाती है, वो जब काम करने लायक नहीं रहते, तो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको यहाँ वहाँ हाथ फैलाना पड़ता है, बच्चों से पैसा लेना पड़ता है। तो हमारे बहुत आग्रह करने के बाद गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है, द पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। ये भी आधी अधूरी जैसे निकली, क्योंकि इसमें उन्होंने स्कीम में रखा है कि 1.5 करोड़ से नीचे का जिसका टर्नओवर है वही इसके लिए लायक होगा। तो हमारी ये आग्रह है कि 1.5 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है, 12 लाख रुपया महीना हो गया, 30 से 40 हजार रुपया डेली हो गया, वो तो छोटा से छोटा पसारी भी कर लेता है ये धंधा। तो हमारा ये आग्रह है कि कम से कम ये स्कीम 5 करोड़ के नीचे तक के लिए लागू होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी जो है उसका लाभ उठा सके। सरकार से गुजारिश है कि इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की अवधि को कम से कम 6 महीने तक बढ़ाया जाए बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। दूसरा, राज्य के और देश के सभी छोटे व्यापारी जो कि रोजगारी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं,
उनके साथ भी जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर का व्यवहार होता है वैसे किया जाए। We at CAMET believe in constructive role as always. Our sole objective is to bring back economy on track in minimum time and with minimum damage. For this, we all stakeholders have to hold hand in hand and work together. The government, the trade and the industry. We are ready to provide all assistance to the government. The food distribution, our own resources, our own infrastructure, our manpower, and that we are already doing. We believe together we can and we will. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వారితో షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడటానికి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి.